बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क़ाला रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा, रब्बि ज़िदनी इल्मा, रब्बि ज़िदनी इल्मा। Dear students, I hope you all are fine and doing well. It's lecture number 2, mathematics for class 9 senior. The date is 20 March 21 and the day is Saturday. Student, today going to start chapter number 4, which is algebraic expression and algebraic formulas. Student, in this chapter you know about the polynomials, you also know about our rational expressions, you define a rational expressions, you examine whether a given algebraic expression is a polynomial or not a polynomial. You also examine that the given expression is a rational expression or not a rational expression. So student, first of all we learn about algebraic expression. Student, you know the algebraic expression that contains the variable, the coefficient of variable, the degree of variable, the constants with operations of addition and subtraction are applied to the algebraic terms. We obtain the algebraic expressions, the expression that contains the operation separated the terms with the help of operations plus or minus. So student, I think you clear about algebraic expression. So student, now what is polynomials? Polynomials mean long terms, mean more than two terms, several terms. So the polynomial in which the same variable contain the different parts. So students, again polynomial in which we have more than two terms, different same variable having different parts, but in a sequence, like first of all a n x to the power n, then reduces n minus 1, then reduces again n minus 2, then it's so on, and n is the highest power of x and it is non-negative integer. Notice the point, it is non-negative integers which is called the degree of that polynomial, and each coefficient is a real numbers. So the coefficient of the highest power of x is called the leading coefficient of that polynomial. Now student, what is rational expressions? First of all, rational expression in the form of quotient, in the form of fraction, where both the numerator and denominator contains the polynomials. So in the rational expression, two polynomials, first is p of x and second is q of x. P of x contain the numerator and q of x is the denominator of that rational expression. So student, notice in the rational expression in the form of quotient, they contain the two polynomials p of x and q of x, and p of x is called the numerator and q of x is called the denominator of that rational expressions. And the important point is that every polynomial can be regarded as a rational. Every polynomial is a rational expression. Every polynomial is a rational expression, but every rational expression need not be a polynomial. आज हम क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करने जाने स्टूडेंट। आपने सबसे पहले पेज को रेडी करना है, जो पैटर्न आपको बताया गया टॉप पे आपकी आ जाएगी गाइडेड प्रैक्टिस, उसके बाद आपका डे और यहाँ पे आपकी डेट। फिर आपने एक्सरसाइज मेंशन करनी है, एक्सरसाइज नंबर 4.1, क्वेश्चन नंबर 5 और पार्ट नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 1 हम करने जाने हैं 15 डिवाइडेड बाय 2x माइनस 3y माइनस 4 डिवाइडेड बाय 3y माइनस 2x। तो सोल्यूशन में फर्स्ट स्टेप जो है हमारे पास स्टूडेंट 15 2x माइनस 3y माइनस 4। यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ पे सिंपल मैंने यहाँ पे फर्स्ट पे x लिख लिया और सेकंड पे y। तो फर्स्ट टर्म जो थी माइनस 2x वो स्टार्ट में लिख दी, और प्लस 3y जो हमारे पास यहाँ पे फर्स्ट टर्म थी वो मैंने यहाँ पे सेकंड टर्म लिख दी। उसके बाद स्टूडेंट्स हमने क्या किया कि यहाँ पे मैंने माइनस साइन को कॉमन लिया। जब माइनस साइन कॉमन लिया तो माइनस साइन बाय कॉमन, ये आपके पास पॉजिटिव में हो गया और ये प्लस माइनस माइनस में हमारे पास कन्वर्ट कर दिया गया। उसके बाद यहाँ पे साइन चेंज हुआ, आपके पास माइनस माइनस प्लस, बाकी उसी तरह से सब दोनों जो फ्रैक्शंस हैं वो लिखी गई हैं।
न्यूमिनेटर में भी सेम और डिनोमिनेटर में भी सेम, यहाँ पे भी न्यूमिनेटर में भी सेम और डिनोमिनेटर में भी सेम। उसके बाद स्टूडेंट्स हमने इन दोनों चूँकि ये दोनों सेम डिनोमिनेटर में सेम था, हमने डिनोमिनेटर का एलसीएम लिया। अब जब डिनोमिनेटर में सेम हो, कॉमन हो, तो वही लिखा जाता है। जिस तरह से आपके पास डिनोमिनेटर में 2 मौजूद हो ना, बोथ अगर हम प्लस करने जा रहे हैं और आपके पास डिनोमिनेटर में 2 है, कॉमन है, तो वही आपका एलसीएम जो है वही आता है। इसी तरह से यहाँ पे भी आपके डिनोमिनेटर में सेम है, तो आपका एलसीएम जो होगा वो 2x माइनस 3y आ जाएगा। अब 2x माइनस 3y यहाँ पे इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, तो आपके पास ऊपर जो है ये 1 से मल्टीप्लाई किया जाएगा, क्योंकि 2x माइनस 3y सेम है, तो ऊपर 1 से मल्टीप्लाई किया जाएगा, आपके पास आ जाएगा 15। यहाँ पे भी 2x माइनस 3y और यहाँ पे भी 2x माइनस 3y सेम है, ऊपर 1 से मल्टीप्लाई किया जाएगा, तो आपके पास आ जाएगा 4। अब दोनों नंबर्स आपने उनको ऐड करना है, 15 प्लस 4 आपके पास आ जाएगा 19 और आपके पास डिवाइडेड आ जाएगा 2x माइनस 3y। तो स्टूडेंट्स आपका ये आंसर है। बुक पे देखिए पार्ट नंबर 2 आपने खुद से सॉल्व करना है। यहाँ पे भी जो है सेम है आपके पास, सिर्फ आपने यहाँ पे चेंजिंग करनी है। मीन चेंजिंग कैसे करनी है, आपने यहाँ पे डिनोमिनेटर कैल्शियम लेना है और फिर उसी तरह से जिस तरह से हमने क्वेश्चन 1 सॉल्व किया था उसी तरह से सेम पैटर्न से आपने सॉल्व करना है। जब आप उसे एलसीएम लेकर 1 बाय 1 उस एलसीएम डिनोमिनेटर से कंपेयर करेंगी, उसके बाद आपके पास ऊपर भी मल्टीप्लाई, न्यूमिनेटर में भी मल्टीप्लाई हो जाएगा। मल्टीप्लिकेशन के बाद आप सिंपल जो है सेम वेरिएबल्स वाले सॉल्व कर दिए जाएंगे, प्लस माइनस किए जाएंगे, उसके बाद आपके बाद सिंप्लीफाई होकर आंसर आ जाएगा। पार्ट नंबर 3 अभी हम करने जा रहे हैं। पार्ट 4 भी आपने खुद करना है। पार्ट 4 में भी आपके पास ये 3 फ्रैक्शंस दी गई हैं और तीनों को आपने सॉल्व करना है। इसी तरह से आपने एलसीएम लेना है। यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे आपका फार्मूला अप्लाई हो जाएगा। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, आप इसे ओपन करेंगी ए प्लस बी और ए माइनस बी, मीन एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई। उसके बाद आपने एक साथ तीनों जो है ना टर्म्स उन्हीं डिनोमिनेटर में जो मौजूद है उनका एलसीएम ले लेना है। यहाँ पे आपने पार्ट 5 में आपने क्या करना है, पार्ट 5 में आपने यहाँ पे पहले मिड टर्म ब्रेक करनी है और यहाँ पे आप लिख लें 2, यहाँ पे आप 2 कॉमन ले लें। कॉमन लेने के बाद आप देखें कि कॉमन लेने के बाद आपके पास आ जाएगा 2 कॉमन x माइनस 9, एक्स स्क्र माइनस 9। फिर यहाँ पे आप लिखेंगे x का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर। फिर यहाँ पे फार्मूला अप्लाई हो जाएगा, एक बार प्लस में ओपन हो जाएगा और एक बार माइनस में ओपन हो जाएगा और उसके बाद जो है आप सिंप्लीफाई कर लेंगे। पार्ट 3 और पार्ट 6 जो है मैं भी आपको सॉल्व करवा रही हूँ। स्टूडेंट्स पार्ट नंबर 3 में आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस 25, यहाँ पे आपने फ़ौरन से नोटिस कर लेना है कि यहाँ पे हमारे पास फार्मूला अप्लाई होगा। डिनोमिनेटर में भी आपके पास मौजूद है एक्स स्क्वायर माइनस 36, आपने नोटिस कर लेना है कि यहाँ पे भी फार्मूला अप्लाई होगा। पहले हम इसे ना स्क्वायर की फॉर्म में लिख देते हैं। मीन एक्स स्क्वायर मीन एक्स ब्रैकेट स्क्वायर माइनस 25 स्क्वायर ऑफ 5, एक्स स्क्वायर 36 स्क्वायर ऑफ 6, यहाँ पे ये 6 लिखा जाएगा। उसके बाद माइनस एज इट इज़, फिर एक्स प्लस 5 और डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 6। मैंने यहाँ पे लिखा अप्लाई यूजिंग फार्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी और ए माइनस बी। फार्मूला ओपन किया, एक्स प्लस 5 और एक्स माइनस 5। फिर नीचे भी इसी तरह डिनोमिनेटर में एक्स प्लस 6 और एक्स माइनस 6 और माइनस एक्स प्लस 5 और एक्स प्लस 6। अब स्टूडेंट्स मैंने क्या किया कि एक्स प्लस 5 और डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 6 को कॉमन लिया, यहाँ पे ये कॉमन चला गया, आपके पास लेफ्ट रह गया एक्स माइनस 5 और एक्स माइनस 6 और यहाँ पे चूँकि कॉमन में ऑलरेडी जा चुका था, यहाँ पे मैंने लिख दिया 1। उसके बाद ये एज इट इज़ लिखा गया और यहाँ पे आपने क्या करना है, एलसीएम ले लेना है। यहाँ पे कुछ भी मौजूद नहीं है तो यहाँ पे 1 है, आपके एलसीएम में आ जाएगा एक्स माइनस 6। आपने कंपेयर किया एक्स माइनस 6 यहाँ पे मौजूद है तो सिंपल आपने इसको 1 से मल्टीप्लाई किया, आपके पास आ गया एक्स माइनस 6। यहाँ पे 1 है, यहाँ पे आपके पास एक्स माइनस 6 है। इट्स मीन एक्स माइनस 6 ने यहाँ पे जाके मल्टीप्लाई हो जाना है 1 के साथ, तो आपके पास आ जाएगा एक्स माइनस 6। उसके बाद एक्स माइनस 5, यहाँ पे माइनस अंदर मल्टीप्लाई किया जाएगा, माइनस एक्स माइनस माइनस प्लस 6, एक्स एक्स से कैंसिल, प्लस माइनस माइनस 6 माइनस 5 1। उसके बाद चूँकि यह मल्टीप्लिकेशन है, याद रखिए एलसीएम लिया जाता है प्लस और माइनस में। जब मल्टीप्लिकेशन होती है तो आपके पास या तो कटिंग आप कर सकते हैं न्यूमिनेटर की डिनोमिनेटर से, या आप जो है न्यूमिनेटर को न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई। इसी तरह 1 को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया एक्स प्लस 5 से और यहाँ पे एक्स एक्स से मल्टीप्लाई हुआ एक्स स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 6 से मल्टीप्लाई हुआ 6 स्क्वायर। यहाँ पे मैंने और सिंप्लीफाई करके यहाँ पे मैंने लिख दिया एक्स स्क्वायर, यहाँ पे आप नोट करें, और यहाँ पे माइनस 6 स्क्वायर, 6 6 36। तो यहाँ पे ये आंसर आ गया आपका। ये फर्दर जो है ये सिंप्लीफाई नहीं किया जा सकता, तो यहाँ पे मैं इसे स्टॉप कर रही हूँ।